That was the about dynamics part. Here it is an additional part of our some chapters, like chapter number 2 that was about kinematics, chapter number 3 that was about dynamics part 1, and 4 chapter number 4 dynamics part 2. They all includes about the motion. For that, mathematical derivation of equation of motion are an essential subject for this. Okay, so how these derivations are actually made, what was the history before them, we had to see this. Okay, mathematical derivation of equation of motion. When the body is moving along a straight line with uniform acceleration, a relation can be established between the velocity of the Form body, acceleration. acceleration of the body, and the distance traveled by the body in a specific time by a set of equations. These equations are called equation of motion. Here you have to memorize the definition of equation of motion, and now count how many terms they are used in this definition. Here they are used. First term that was about acceleration, second term was velocity, third term was time, right? Meanwhile, they Yes. are saying about distance के इन सबका आपस में क्या रिलेशन है, कैसे ये चीजें आपस में रिलेट कर रही हैं, ठीक है? कौन कौन सी? डिस्टेंस हो गया, देन आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और हमारे पास इसमें क्या चीज आती है? टाइम आता है, ठीक है? सो थ्री इक्वेशन जो है वो आपके पास आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या है? v2 माइनस u2 2as। ओके, यहाँ आपके पास जो बेटा s है इसको आप कैपिटल S भी लिख सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट आप अपने नोट्स अपने हाथ में रखें, जो चीजें मैं कर रही हूँ ये लेड पेंसिल से आप ऐड करते जाएंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है? मुस्तफा प्लीज सुन रहे हैं मुझे बेटा? अपना आप काइंडली कैमरा भी ऑन करें। Okay. And the derivation. या यहाँ मैं आपको बता रही थी कि 1/2 a t स्क्वायर जो है इसे आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। Okay. 1/2, ये आपके पास इस तरह है, और ये जो s लिखा हुआ है ये आप कैपिटल भी यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको डिस्टेंस शो करना है। डिस्टेंस के लिए आपके पास यू, ये देखें ये यू है, 1/2 a t स्क्वायर। मीन वाइल a t स्क्वायर जो है बेटा ये आपके पास मल्टीप्लाई टर्म है, ठीक है? और डिवाइडेड में जस्ट 1/2 है। अब ये आपके पास थर्ड इक्वेशन में क्या है? v2 माइनस यू टू इज इक्वल टू 2s। अब हमने क्या देखना है? हमने बेटा इनकी हिस्ट्री देखनी है, इनकी डेरिवेशन देखनी है कि इन्होंने हमें पकी पकाई खीर तो दे दी है बट ये एक्चुअल में हुआ कैसे है, ठीक है? दिस थे, और ये V v equals to U multiplied by AT. ये U क्या है? u is representing initial velocity whereas v representing Okay. final velocity। अब आप इनकी जगह पे अगर आपको u लिखना इजी नहीं लग रहा मुस्तफा, आप वी एफ और वी आई भी ऐड कर सकते हैं। आपको कंसेप्ट सेम रखना है लेकिन आप Yes. इसमें एडिशन कर सकते हैं। यही तो बात मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको ये यू अजीब लग रहा है तो आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं? आप वी एफ और वी आई लगा दें, नो प्रॉब्लम। वी एफ रिप्रेजेंटिंग फाइनल वेलोसिटी, वी आई रिप्रेजेंटिंग इनिशियल वेलोसिटी। अदरवाइज यू इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग इनिशियल वेलोसिटी and v is representing Okay. final velocity according to your notes. Okay, now how these equations are actually made, what was the
history before them, how these derivation are made. Here you can see that u is equal to initial velocity of the body, v is equal to final velocity of the body, a is representing uniform acceleration of the body, t is equal to time taken, and s is equal to distance traveled. Okay, firstly we will have to move towards first equation of motion. As we are seeing on a screen that first equation of motion is equal to v is equal to, meanwhile final velocity is equal to initial velocity plus acceleration multiply time, right? Yes. Repeat this. What is the first equation of motion? V, which is equal to initial velocity, No. V is equal to final velocity. V, which is equal to final velocity equals to initial velocity plus acceleration multiplied by time. Very good. So consider a body having initial velocity u. Suppose it is subjected to a uniform acceleration a, so that after time t, its final velocity will becomes v. Now we know what we know. We know about the acceleration. As we know, acceleration is equal to change in velocity over time. Change in velocity mean acceleration का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, राइट? ये हम Time. फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ फाइनल वेलोसिटी की जगह पे v पुट कर रहे हैं और इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे u पुट कर रहे हैं। v माइनस यू, आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। Okay. v माइनस यू इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब आपके पास एक्सेलरेशन इक्वल हो गया v माइनस यू ओवर टी। अब आपके पास, आप देख सकते हैं आप इसमें से कैसे निकालेंगे। आपके पास v इधर ही रह जाएगा, ठीक है, t यहां डिवाइड हो रहा था तो a के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? और यहाँ Yes. जो माइनस u था, इधर आके इक्वल्स के इधर आके किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। मीनवाइल u पॉजिटिव प्लस ए टी, तो हमारे पास टोटल इक्वेशन बन गई v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन कैसे टेक प्लेस हुई है। अंडरस्टैंड दैट और नॉट? इसको आप दूसरे वर्ड्स में आप इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें, फाइनल वेलोसिटी I understand. इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। मीनवाइल आप दोनों तरह से, अगर आपको यू यूज करना इजी लग रहा है वो आपकी मर्जी है, अगर आपको वी एफ और वी आई यूज करना ज्यादा इजी लग रहा है वो आपकी मर्जी है। इट इज नॉट, जस्ट आपको फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करना है कि एक्चुअल में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइंस करती है फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को। अंडरस्टैंड दैट? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमने, अगर हमारे पास कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वो हमें कहते हैं कि फाइंड फाइनल वेलोसिटी, तो हमें उसमें क्या पता होना चाहिए, हम देखेंगे व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, what is its acceleration, and what was the time. Then we simply write the initial velocity, then sum up acceleration multiply time, then we will get final velocity. Okay, this is the formula for finding final velocity. Any question? No, ma'am, there's no question. Okay, so here is given second equation of motion. Second equation, that is equal to, that is defining distance. How can we find the distance? We can find the distance if we know about the initial velocity, टाइम एंड एक्सेलरेशन, राइट? देखिए, आपके पास फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी पता हो, आपको टाइम पता हो, आपको एक्सेलरेशन पता हो, तो आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास कैसे ड्राइव हुई है ये देखते हैं कि सपोज अ बॉडी दैट हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a फॉर टाइम t, सो दैट
its final velocity becomes v, the distance traveled by moving body in time t is s। देखिए यहाँ इन्होंने कैपिटल एस यूज किया हुआ है। आई टेल ना कि स्मॉल एस और कैपिटल एस डजेंट मैटर। then the average velocity is equal to v plus u divided by 2 distance traveled। अब यहाँ देखें आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, राइट। एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। अब आपको yes, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी आनी चाहिए। एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, देखें हमने पहले बेटा, vf minus vi, हाँ आपने एक पहले पढ़ा हुआ चेंज इन वेलोसिटी, वो होता है वी एफ माइनस वी आई, राइट। ये इक्वल होता है चेंज इन yes, वेलोसिटी के। अब अगर आपके पास आ जाए कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है वी एफ प्लस वी आई fine, डिवाइडेड बाई टू। आपको पता है okay, हम किसी भी चीज का जब एवरेज लेते हैं तो हम उसको डिवाइडेड बाई टू टू कर देते हैं, या उसका मीन ले लेते हैं। मीन का पता है मैथमेटिकल टर्म में जितनी टर्म्स है उनको सम अप किया और जितना उनका नंबर है उसे डिवाइड कर दिया, yes, तो उसे हमें एवरेज लेना आता है। अब यहाँ हमारे पास देखिए हमने फाइंड करना था डिस्टेंस के लिए एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी थी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और उसको डिवाइडेड बाई टू कर देंगे, राइट। अब यहाँ आप सामने देखें, आपके पास फॉर्मूला गिवन है s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। एवरेज वेलोसिटी में आप अपना ये फॉर्मूला लिखेंगे, t कर देंगे। अब t को आप अंदर वाली सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे देखें किसके इक्वल हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करने से भी पहले u प्लस v था, यस। मल्टीप्लाई करने से भी पहले अब आप मुझे बताएं, u प्लस वी ओवर टू डिवाइड इंटू टी है, ठीक है। अब आपको यहाँ v की वैल्यू, u की वैल्यू पहले पता है, yes, कहां से u पता is equal to final velocity, u is equal to initial velocity, and v equals to final velocity, and since u equals to v plus at, है, वेरी as गुड। given here, u we will की write हम u इधर plus वैल्यू u पुट plus करेंगे, at. u की हम यहाँ v की हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे u प्लस ए टी, ठीक है। अब यहाँ देखिए इन्होंने u प्लस ए टी वी की जगह पे फाइनल वेलोसिटी जो हमने पहले फाइंड किया है इक्वेशन वन के, अगर आप इक्वेशन वन में देखें तो वहां हमारे पास v की वैल्यू आई थी, वही वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं। ये देखें u प्लस ए टी, राइट। तो फिर हमने u equals to v plus at, हमने इसको ऐसा चेंज किया। हमने यहाँ कुछ भी चेंज नहीं किया, ये इसको आप इग्नोर करें। आप इसको देखें u प्लस वी था, v को इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए उसकी वैल्यू पुट कर दें u प्लस ए टी, सिंपल। Okay, Okay, now in next term you have to multiply u plus u, that will become equal to 2u plus at divided by 2 into t। अब ये t जो है अंदर वाली टर्म से गेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2ut प्लस ए टी स्क्र डिवाइडेड बाई टू। अब ये नेक्स्ट क्या होगा, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कैसे करते हैं, 2ut डिवाइडेड बाई टू, तो ये टू टू से गेट कट डाउन हो जाएगा, इधर आएगा सिंपल यूटी। और इन सेकंड टर्म में हमारे पास क्या होगा, प्लस का साइन ए टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू है, तो ये हमारे पास बटे में आ जाएगी। मैम ये जो s equals to 2u plus at divided by 2, ये पूरा t में enclose किया गया है, तो फिर उसका मतलब है कि 2b t से मल्टीप्लाई होगा और 2u plus at भी t से मल्टीप्लाई होगा। तो ये ऐसा क्यों नहीं? जस्ट ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली टर्म्स मल्टीप्लाई नहीं होती है। ओके, क्योंकि ये t अपॉन 1 होगा। या ये 1/2 ए टी स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास क्या बच गया, यू टी बच गया, क्योंकि टू टू से कट गया था। तो यही हमारे पास फॉर्मूला है दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई है। अब आप मुझे जरा बताएं क्या किया है मैंने, जल्दी से बताएं शाबाश, ओके, क्या समझ में आया है, कैसे हुआ है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ऐसे डिराइव किया कि हमने
जब हमने इक्वेशन लिखा है इसका एस इक्वल्स टू यू प्लस वी डिवाइड बाई टू, हमने इसका मीन लिया, हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने वेलोसिटी का एवरेज ही ले लिया, वेरी चेंज गुड। वेलोसिटी का एवरेज लेकर हमने इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला ले लिया, u वेरी इक्वल्स गुड। टू वी प्लस ए टी, हमने यू एस इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फिर उसके बाद यू प्लस यू टू यू हो गए प्लस ए वेरी टी, गुड। फिर उसके बाद हमने टी को बाहर निकाल दिया, फिर उसके बाद हमने एस इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, फिर गुड। इसके बाद हमने टू को टू से कट किया, यू टी प्लस ए टी डिवाइड बाई टू, ये फिर स्टेप हमने अपने यू टी न्यूमेरिकल प्लस पे, वन अपॉन टू ए टी यस, स्क्वायर। ये स्टेप अपने नोट्स पे ऐड कर लें। नोट्स पे अब ये स्टेप नहीं गिवन, ये ना हो आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपके ये जो स्टेप्स हैं इसलिए मैं ये साथ साथ बता रही हूँ आपको, ताकि आप ये नोट्स पे अपने एडिट कर लें। डिवाइड बाई टू। भाई तो तेरा बार बार पानी मांगना पड़ता है भाई। अभी हमें डिराइव करने आया। Yes, I added these two steps on my note. Yeah. Now, here is third equation of motion. That was also so interesting. V2 minus U2। अच्छा, यहाँ ये जो 2 है ना, ये रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली में ना स्क्वायर कर रहा है। मीनवाइल V स्क्वायर स्क्वायर कर रहा है। माइनस U स्क्वायर। V स्क्वायर Yes. रिप्रेजेंटिंग फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, माइनस U स्क्वायर रिप्रेजेंटिंग इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इक्वल टू 2AS। अब ये इक्वेशन कैसे डिराइव हुई है, अब हम ये देखते हैं। अब देखिए हमारे पास ना, पहले हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को भी सेकंड इक्वेशन को भी। ओके। Yes. देखें, सेकंड इक्वेशन भी राइट की एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन ओवर टू ए टी स्क्वायर। देन फर्स्ट इक्वेशन भी राइट की वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हम यहाँ से ए टी की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ए टी किसके इक्वल है, अंडरस्टूड सी बात है, ए टी हमारे पास वी माइनस यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर आपके पास यू जो था वो पॉजिटिव हो रहा था, तो इधर जाके किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। Acceleration multiplied by time. वी माइनस यू के इक्वल है। ठीक है। अब यहां से आपको Yes. टी की वैल्यू निकालनी है, टी किसके इक्वल हो जाएगा, वी माइनस यू। T equals to V minus U divided by A. वेरी गुड। अब आपने क्या करना है, ये टी की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर सेकंड में। सिंपल। फर्स्ट इक्वेशन ली, उसमें से टी को एक्सट्रैक्ट किया और इस वैल्यू को किसमें पुट कर दिया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। सेकंड इक्वेशन क्या थी, एस इज इक्वल टू थी यू टू यू टी, राइट। हमने सारा वैल्यू डाल दिया यहाँ पे। यू टी, यू टी हमने टी को ऐसे डिराइव किया, v माइनस यू डिवाइड बाई ए, हमने a को ऐसे भी डिराइव किया, v माइनस यू डिवाइड बाई ए। हम लोग लॉस ऑफ एक्सपोनेंट से हम लोग इसको ऐसे करेंगे, लॉस u v ऑब्वियसली यहाँ माइनस कौन सा लॉ यूज करें हम यहाँ। मल्टीप्लाई करेंगे u v। हम्म। हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज कर रहे हैं। वेरी गुड। देखें अभी हाँ, हमारे पास इक्वेशन मैंने राइट कर दिया है, यहाँ जहां जहां टी था टी की वैल्यू पुट कर दी, वी माइनस यू ओवर ए, वन ओवर टू ए इंटू दैट। अब हमने इक्वेशन की जो यस। वैल्यूज थी उनको गेट मल्टीप्लाई कर दिया, यू वी माइनस यू स्क्वायर ओवर ए हो गया हमने पॉजिटिव, ओपन कर दिया, या ये ए सब बी कुछ हमने स्क्वायर, ओपन कर दिया, तो फिर या हमारा आंसर आया। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, वी माइनस यू का स्क्वायर। यस। ये हमारे पास अल्जेब्रिक फॉर्मूला है, यू नो अबाउट दैट, ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a square minus b square plus प्लस, 2ab। नो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए स्क्वायर जब ये माइनस माइनस हो, है, ओके। या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अगर आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब सब टर्म्स के साथ पॉजिटिव हो जाता है। बट इन केस आपके पास नेगेटिव हो, जैसे अब आपके पास यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो आप उसमें क्या करते हैं, टू ए बी के साथ, यानी टू, जैसे यहाँ टू यू भी है उस टर्म के साथ नेगेटिव लगाते हैं, अदरवाइज बाकी पॉजिटिव ही रहता है। सिमिलरली लाइक दैट, अब आपके पास ये वाला था तो इसमें आपके पास फॉर्मूले में वी स्क्वायर माइनस पॉजिटिव यू स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस, ये फॉर्मूला है। ठीक है।
इस फॉर्मूले को आपने इधर पुट किया। अब आपने इसको क्या किया, अब ये आपके पास जो ए था ब्रैकेट के बाहर, इसको भी आपने गेट मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई ना भी करें, इन्होंने कट डाउन कर दिया, सिंपल, आप वैसे भी कर सकते हैं। ए था और नीचे 2a² था, आपने एक स्क्वायर से तो एक फिर उन्होंने कट दिया। कट कर दिया। नेक्स्ट आप इसको क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। 2a आपके पास एलसीएम आ गया, आपने ये सारे टर्म्स को लिखा। और अब क्या हो रहा है नेक्स्ट में, ये देखें, ये 2uv पॉजिटिव था, ये 2uv नेगेटिव था, ये दोनों चीजें आपस में कट डाउन हो गई। ये दोनों कट डाउन हो गए, फिर इसके अब बाद टू टू यू यू स्क्वायर स्क्वायर और में यू से स्क्वायर एक दोनों। यू स्क्वायर आप निकालेंगे तो पीछे बच गया यू स्क्वायर, 1 यू स्क्वायर बच गया, यस, और प्लस वी स्क्वायर बच गया। क्योंकि हमने टू ए को कट डाउन कर दिया। या और जो नीचे वाला 2a था, ये किसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ s था, यहाँ ये डिवाइड हो रहा था तो 2a इधर आ जाएगा। यस, तो फिर एस से मल्टीप्लाई होगा बिकॉज वी गोइंग टू पुट इट इन द इक्वेशन, तो फिर हमारा आंसर ये आएगा हमारे पास फाइनली बन गई। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। ए एस इसलिए हुआ क्योंकि हमने टू ए को जो है वो दूसरी साइड पे रख दिया। और ये यू स्क्वायर के साथ माइनस का साइन आना है, क्योंकि देखें ये बड़ा था ना, -2u में से आपने एक पॉजिटिव निकाला है, तो बड़े के साइन के साइड यस, माइनस था, तो ये दैट्स वाई। अब ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन को कैसे कर सकते हैं, v2 - u2, इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग में माइनस लिखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। v2 - u2 = 2as, दिस वन इज इक्वेशन क्या नंबर। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है डिराइव द थर्ड लॉ, थर्ड इक्वेशन, एग्जैक्टली थर्ड? आता है, एग्जैक्टली आता है, दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नहीं आएगा, बिकॉज यू नो वेल फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बहुत शॉर्ट है, बट सेकंड और थर्ड और दो इकट्ठी भी आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट 8 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएंगी। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अंडरस्टैंड दैट। यस, इंटरेस्टिंग थी ना, मुझे तो ये बहुत मजे की लगती थी अपने दौर में, अब आपका पता नहीं। वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्योंकि मैथमेटिकली तो है सारा कुछ, आप फर्स्ट ड्राइव कर लो, सेकंड कर लो, थर्ड तो सिर्फ उनमें से ही करनी होती है। थर्ड मेरी मोस्ट फेवरेट थी। अच्छा, इनकी प्रैक्टिस है बस, आप बेटा इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। मैं समझती हूँ आपको फॉर्मूलाज तो ऑन फिंगर टिप याद हो जाएंगे, बट आपको इनकी डेरिवेशन भी फिंगर टिप पे याद हो, कैसे इनको डिराइव किया है, ये सारी चीजें। ओके, अब आप मुझे ये बताएं यस, कि इसमें से पॉइंट जो करने वाला है वो भी राइट करें, कि हम ये चीजें जो हैं, तीनों इक्वेशंस जो हैं, किस किस चीज को फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देखें, हम इस ये वाली इक्वेशन थी ना हमारे पास, यस, हम इसमें से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, मतलब हमें अगर देखें, आपको जब न्यूमेरिकल आएगा ना मुस्तफा, आपने देखना है, आपने उसको पढ़ना है, फिर आपने उसको अंडरस्टैंड करना है कि इसमें गिवन डाटा क्या क्या है। दे आर गिविंग यू फाइनल वेलोसिटी, दे आर गिविंग यू इनिशियल वेलोसिटी, दे आर गिविंग यू टाइम, दे आर गिविंग यू एक्सेलरेशन, क्या चीज मिसिंग है। फिर आपने सोचना है वो मिसिंग चीज आपको तीनों इक्वेशंस में से किस में से मिल सकती है, और बासानी मिल सकती है। मतलब आपके पास कुछ केसेस ऐसे आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे कि उनमें फर्स्ट इक्वेशन भी इंप्लाई हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है। वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये ना मैं थर्ड यूज करूंगा गलत हो जाएगा, फर्स्ट नहीं, आपका कभी भी वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको ये सोचना है कि मेरे पास क्या चीज, कौन सी इक्वेशन यहाँ ज्यादा सूटेबल रहेगी। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, देखिए इसमें से बेटा आपको अगर फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, एक्सेलरेशन भी गिवन हो, टाइम भी गिवन हो, तो आप इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। यस। कैसे By कर सकते rearranging हैं, the equation, we can write it as आप v एटी को divided by 80. एटी को आप उधर जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल। Yes, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इनिशियल क्या। अब इसमें से आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। yes, we'll put it in divide after we put the equation. वेरी V गुड। upon t इसी plus u. तरीके से मैं यही बात बता रही हूँ कि एक एक इक्वेशन आपको बहुत सारी चीजें मतलब ड्राइव आउट करने में हेल्प करती है। ओके, नाउ इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, Yes, you just take 5 minutes and read this, meanwhile in your mind, in as this note from start to end.
एंड थिंक्स सो के आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको लगे कि ये नहीं हो सकी या मैम ने नहीं बताई। जल्दी से देखें शाबाशी से, ओके मुझे बताएं।